IPC. Now today we are going to discuss the topic abatement. That is very important for APO examination. We all have done general exception and then the overall indexing. See, the questions from abatement is asked generally on section 108. So 108 is very important for this. But you need to know the section numbers right from 107 to 117. You need to know because from any of the sections question may be asked. Since we are focusing in this session only on the prelims, so I'll tell you that how the question in prelims examination is made from that part. Okay. So before discussing the part, law of abatement, that is right from 107 onwards, first I'll tell you that what kind of question is asked. So see, in abatement, few questions they have asked. One is like, how many modes are there for abatement? That you need to know. Then they have asked the question on the illustrations. Illustration of 107, illustration of 108. Okay. They have also asked the questions on 112. Then on punishment part, 109, 115, 116. Though these punishment parts, they are important for mains. But for preliminary examination, at least you should have an idea that what kind of question is asked. As far as this law of abatement is concerned, chapter 5 is concerned, maxims are not having that much role. Okay? Maxims इस पे बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं abatement पे. इसलिए हमें जो पढ़ना है basically we have to study these sections, their illustrations, and then we have to practice the questions, that what kind of questions have been asked in the previous year examinations. All right. So let's start with chapter 5, that is your law of abatement. 107, it says abatement of a thing. Abatement of a thing. 107 in itself is not an offense. It is just defining what is an abatement. Okay. What is an abatement that could be an offense? What kind of abatement could be an offense? Okay. A person abates the doing of a thing who first instigates any person to do that thing. First kind is instigation. It could be by express acts expressly or impliedly by gestures also. ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो अबेटमेंट है क्या वो साइंस के थ्रू किया जा सकता है? तो यस, आंसर इज यस, इट कुड बी. ओके. एनी पर्सन टू डू दैट थिंग. इंस्टिगेशन, again I am saying that you have to know the requirement of the examination. आपको पूरा इसको अभी डीप में पढ़ना नहीं है. आपको बस इतना जानना है कि आपका सेक्शन क्लियर हो, चाहे वो मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए. सेक्शन आपको क्लियर होना चाहिए और फिर उस पर आप प्रैक्टिस करिए सेट की कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पे. ओके. अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु फर्स्ट instigates any person to do that thing. So this is your first form. Engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing. Second mode of abatement is doing conspiracy. आपने conspiracy की, दूसरे आदमी को आपने abet कर दिया, उसने जा करके offense कर दिया. ठीक है. If an act or illegal omission takes place, इस पे आपके questions आते हैं. Suppose A has done a conspiracy. A has done the abatement by way of conspiracy. And after the conspiracy, no act has taken place. What would be the liability of A? Such kind of question is asked. So इस केस में कोई liability नहीं होगी क्योंकि conspiracy होने के बाद takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing. And in order to the doing of that thing. Doing of that thing. Doing of that thing means उस चीज को करना पूरी तरह से जरूरी नहीं है, बट उसको करने के लिए अगर आपने कुछ एक्ट कर दिया. सपोज यू हैव डन सम, आई हैव अबेटेड समवन बाय एंटरिंग इनटू अ कॉन्स्पिरेसी फॉर कमिटिंग थेफ्ट. नाउ थेफ्ट आई हैव कमिटेड और नॉट, दैट इज नॉट मटेरियल, बट फॉर कमिटिंग थेफ्ट some act has been done in order to do that. Then in that case your
conspiracy would be complete. Your abatement by conspiracy would be complete, right? Third is your intentionally aids. Intentional aid must be there. You should be having the knowledge that the person is going to do that. You should know about the thing. You should know about the offense that is going to be committed. Means you should be aware about that the aid that I am providing, okay, the help that I am rendering, that is for by any act or illegal omission the doing of that thing. That is for committing an offense. तो ये 3 चीज़ें आपको बहुत याद रखनी है, अच्छे से याद रखनी है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, और इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है. अबेटमेंट अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है 107. इट जस्ट डिफाइंस व्हाट इज अबेटमेंट. दैट कुड बी एन ऑफेंस. दैट कुड बी एन ऑफेंस, राइट. सेकेंड, 3 तरीके से होता है, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और इंटेंशनल एड, राइट. नाउ sometimes this question is asked. I have just told you that in conspiracy you require some act, and when you will study intentional aid and explanation 2, you will find that for intentional aid also some act, some action is required. Some action is required, okay. Like if we see the Bear Act, आप एक्सप्लेनेशन 2 देखिए. एक्सप्लेनेशन 2 says whoever either prior to or at the time, whoever either prior to or at the time of the commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act, in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitates. सिर्फ हेल्प दे देने से आप अबेटमेंट के लिए लाइबल नहीं होते हैं. यू विल बी लाइबल फॉर द अबेटमेंट इफ द हेल्प दैट यू हैव गिवन बिकॉज ऑफ दैट हेल्प देयर बाई कमिटेड, देयर बाई द फैसिलिटेट्स द कमीशन देयर ऑफ. एक्चुअल में वो एक्ट हो जाता है आपका. सो इन दैट केस यू विल बी लाइबल फॉर अबेटमेंट बाई इंटेंशनल एड. सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन that A intentionally aids B for committing murder, but murder has not taken place. Whether A will be liable for abatement by intentional aid or not, the answer would be absolutely no. Why? Because thereby, यहाँ पे क्या लिख रहा है आप एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, thereby facilitates the commission thereof is said to aid the doing of that thing, right? So 3 तरह से आपके होते हैं अबेटमेंट. पहला इंस्टिगेशन, दूसरा कॉन्स्पिरेसी और तीसरा इंटेंशनल एड. लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली. व्हाई स्टूडेंट्स give the wrong answer in multiple choice questions. There are 3 modes. First is instigation, your second is conspiracy, and your third is intentional aid. Intentional aid, right? Now in instigation no further act is required. ये सबसे ज्यादा आपको समझना जरूरी है. इसमें कोई फर्दर एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है. नो फर्दर एक्ट इज रिक्वायर्ड. Why no further act is required? Because after giving the instigations, once you have given the instigation, once you have instigated someone, now it is not within your hands to control that person. Okay, you have done your part, you have done your job. Now that person, now the commission of an offense would depend upon the thinking, upon the act of the other person whom you have given the abatement, whom you have instigated. Are you getting the point? So this is very simple. एक बार जब instigation हो जाता है, मैंने आपको provoke कर दिया, मैंने आपको instigate कर दिया. Now after the instigation, it is not in my hand to stop you. Rather, either you will stop yourself or because of some other factor you will be stopped. Okay? That is why in instigation, no further act is required
फॉर लाइबिलिटी, फॉर लाइबिलिटी। कोई भी फर्दर एक्ट रिक्वायर्ड नहीं है लाइबिलिटी के लिए। इंस्टिगेशन हो गया, एक्ट हो या ना हो, यू विल बी लाइबल। इसी पे आपके क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इन केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड इन केस ऑफ इंटेंशनल एड, some act is required in conspiracy, some act is required. Okay, in case of intentional aid, commission of an offense or of that act is required. So इन दोनों में तो बिल्कुल दे रखा है, ये definition clause में ही दे रखा है, and that is given in your explanation 2 of 107. So you should be very, very clear while attempting the question in your APO exam that in case of instigation, if the question is asked that A instigates B to commit murder and B refuses to commit it, then in that case, whether it will be an offense of abatement or not, answer would be yes, it will be an offense of abatement, because for instigation, no further act is required. A enters into a conspiracy with B to commit murder, and in pursuance thereof, some act has been done, okay, killing has taken place, they tried to kill or they tried to enter into the house and kill. In that case, whether A will be liable for criminal conspiracy, answer would be yes. Some act has been done in pursuance thereof. कुछ act होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि murder ही हो, कुछ act हो जाना चाहिए. Third, intentional aid. In intentional aid, the aid that you have provided, the help that you have rendered, if for that help, because of that help, the offense has been committed. You provided the pistol to commit murder. Okay? Murder has been committed with that pistol only, with that firearm only. Now you will be liable. अगर मर्डर होता है तो, मर्डर नहीं होता है, सिर्फ कोई एक्ट हो जाता है, उसके लिए आप लाइबल नहीं होंगे. सो ये 3 डिग्री है. ओके, सबसे हाईएस्ट डिग्री का अबेटमेंट किस में होता है? इंस्टिगेशन में, बिकॉज नो फर्दर एक्ट इज रिक्वायर्ड. ओके, आप ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा. आपने पूरी आईपीसी पढ़ी होगी अपने एलएलबी में, बीएलएलबी में, अपने लॉ कोर्स में, अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे. बट again and again I am saying that you need to cater the requirement of the particular exam, कि उस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन हो सकता है आप ये सारा पढ़ो, ये पूछे ही ना, बट एटलीस्ट यू विल डेवलप दैट हैबिट कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं. सो यू विल अप्लाई सेम लॉजिक टू दी अदर क्वेश्चन, राइट. सो इंस्टिगेशन, जिसमें किसी एक्ट की जरूरत नहीं है, आपने इंस्टिगेट कर दिया, आप लाइबल हो गए अबेटमेंट के लिए. सेकेंड, कॉन्स्पिरेसी, इसमें ऑफेंस होने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्ट भी अगर होगा तभी हम आपको लाइबल करेंगे अबेटमेंट के लिए. थर्ड, दिस इज इंटेंशनल एड. इंटेंशनल एड, फर्स्ट थिंग, इट शुड बी ईदर प्रायर टू और एट द टाइम ऑफ गिविंग द अबेटमेंट, दैट इज इंटेंशनल एड. सेकेंड, द इंटेंशनल एड दैट यू हैव गिवन, इट शुड ओनली एंड ओनली be for the purpose of committing the offense, and because of that intentional aid offense has been committed. As simple as that. तो अगर आपने मर्डर के लिए एड किया था और मर्डर हो गया, तभी आप अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड के लिए लायबल होंगे. Am I clear to you? Okay? So this is the very clear concept of law of abatement. 3 kinds are there. By 3 modes, you can commit the offense of law of abatement that has been defined in 107. Right? First is instigation, second is your conspiracy, and third is your intentional aid. Okay? Now, just read the section once for your better understanding. 107, abatement of a thing. Okay, that is why I am telling you this is not an offense. It is just defining that what is an abatement. Abatement of a thing. A person abates the doing of a thing who first instigates any person to do that thing, or
engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing. If an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing. Thirdly, intentionally aids by an act or illegal omission the doing of that thing. Explanation 1. A person who by willful misrepresentation, now this question may also be asked, by willful misrepresentation or by willful concealment of a material fact which he is bound to disclose, voluntarily causes or procures or attempts to cause or procure a thing to be done, is said to instigate the doing of that thing. Okay? So इंस्टिगेशन वाला जो पार्ट है, इसमें ये दो चीजें और ऐड कर रहे हैं जो आपके क्वेश्चंस में आता है. प्रिलिमिनरी में ही पूछेगा ये सब, मेंस के पार्ट नहीं है. मेंस में तो वो आपसे डायरेक्ट अप्लाइड क्वेश्चन पूछेगा. मेंस में वो आपसे पूरा का पूरा लॉ ऑफ अबेटमेंट पूछ देगा. एक्सप्लेन लॉ ऑफ अबेटमेंट विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड रेलेवेंट केस लॉज. ओके, देयर यू हैव टू राइट एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. यहां पे वो क्या करते हैं, वो पिक एंड चूज करते हैं. सिंपल सेक्शन उठाया, सेक्शन से उठा के उन्होंने क्वेश्चन बना दिया. नाउ हियर दे मे ask this question that suppose A has concealed some material information which he was bound to disclose and he has not disclosed it. Later on it was found out that A voluntarily concealed certain material information with respect to a particular transaction or a fact or something like that. Whether he will be liable for abatement or not. अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है. सबसे पहले तो आप रिकॉल करेंगे अबेटमेंट का प्रोविजन. सो यू विल रिकॉल सेक्शन 107. ऑल राइट, इट डिफाइंस अबेटमेंट. देर आर 3 modes. Immediately your brain will switch to that. First is instigation, second is conspiracy, third is intentional aid. Immediately you will get to know conspiracy और intentional aid का मामला तो है ही नहीं, ये मामला है instigation का. ठीक है. अब instigation क्या कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट होता है या नहीं होता है? सो एक्सप्लेनेशन सेज यस, इट इज कवर्ड. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. सपोज देयर इज अ मैरिज प्रपोजल फ्रॉम द साइड ऑफ बॉय, ओके, एंड द गर्ल सेज दैट आई एम वेरी क्लियर दैट आई एम नॉट गोइंग टू मैरी एनीवन हु इज बाल्ड. मैं किसी ऐसे से शादी नहीं करने वाली हूं जिसके सर पे बाल नहीं है. ओके, despite knowing the clear intention of the girl that she is not going to get married with someone who is bald, the boy who was actually bald, okay, he concealed this fact that he is wearing a wig. Okay, उसने इस फैक्ट को कंसील किया कि उसके पास हेयर्स नहीं है सर पे और वो विग लगा के चल रहा है. एंड देन उसने इस तरह से मिसरिप्रेजेंटेशन किया, शादी हो गई. बाद में जब लड़की को ये बात पता चली तो उसने इसमें केस कर दिया. उसने कहा दिस इज अबेटमेंट, ये एक अबेटमेंट है बाय इंस्टिगेशन फॉर रॉन्गफुली एंटरिंग इनटू अ मैरिज. फोर्सफुल मैरिज में आपने बिना कंसेंट के मेरे साथ मैरिज की, क्योंकि मेरा पूरा कंसेंट इसी पे बेस्ड था. ओके, इट मे अमाउंट टू डिफरेंट ऑफेंसेस. इट मे अमाउंट टू ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, इट मे अमाउंट टू ऑफेंस ऑफ रेप, मे बी whatever will be the charges. बट उसका जो कंसेंट था वो पूरा का पूरा आपने जो ऑफेंस किया, इंस्टिगेट किया, वो इस वजह से कर दिया. voluntarily causes and you have willfully misrepresented by willful concealment of a material fact. willfully you have concealed the fact. ठीक है, तो ये चीजें आपसे पूछता है कि willful concealment या willful misrepresentation ऑफ फैक्ट्स, मटेरियल फैक्ट. अब देखिए अगर ट्रिक करना है उसको क्वेश्चन को तो वो कैसे कर देगा. बच्चों को लोग बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिया, कितना सिंपल क्वेश्चन वो पूछेंगे. उसे क्वेश्चन को ट्रिक करना है. ही विल ट्रिक द क्वेश्चन एंड द एग्जामिनर वुड राइट willful misrepresentation, or they will only give misrepresentation of a fact, whether it would amount to one of the modes of law of abatement or not, whether it will amount to, whether it is covered in abatement by instigation or not. You have to answer no.
देखो यहाँ पे वर्ड बहुत क्लियर है. व्हेन द वर्ड्स आर वेरी वेरी क्लियर यू डोंट हैव टू इंटरप्रेट. willful, willful, voluntarily, procures, cause और procure. बिल्कुल क्लियर लिखा है. willful होना चाहिए, willful होना चाहिए बिल्कुल. Girl has said that show me your pictures, real one, फिल्टर वाली नहीं. उसने क्या किया, लड़के ने सारी फोटो अपनी भेज दी. पहले जिसमें उसके बाल थे वो भी, जिसमें नहीं थे वो भी. बाद में लड़की कहती है कि तुमने मुझे सच नहीं बताया दैट यू आर बाल्ड. नाउ दिस इज नॉट विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, क्योंकि उसने एक्चुअल दोनों फोटोज आपको भेज दी थी. उसे लगा शायद आप ये चीज मानते हो, ये आप चीज जानते हो. उस पर एक बहुत अच्छी मूवी भी बनी थी, राइट. सो विलफुल शुड बी देयर. तो अगर उसे ट्रिक करना है, वो क्वेश्चन कैसे ट्रिक कर देगा? द एग्जामिनर वुड give you a question that concealment of a fact, whether it would amount to instigation as per section 107 or not. Answer would be no. क्योंकि willful concealment of material fact ही क्या माना जाता है? Which he is bound to disclose. इसी को माना जाता है कि ये क्या है? लॉ ऑफ अबेटमेंट में कवर्ड है, इंस्टिगेशन में कवर्ड है. क्लियर? तो इस तरह से आपसे वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग वन थिंग, यू डोंट हैव टू गो इन डीप. ट्राई टू फोकस ऑन द पैटर्न एंड ट्राई टू क्लियर द एग्जाम. नॉलेज आपको चाहिए, लेकिन जितनी नॉलेज चाहिए, जिस पैटर्न की नॉलेज चाहिए, आपको उस पर फोकस करना है. ठीक है? देन वी कैन ऑल्सो सी द इलस्ट्रेशन. A public officer is authorized by warrant from a court of justice to apprehend Z. B, knowing that fact and also that C is not Z, willfully represent. देखो यहाँ word use कर दिया, willfully represent लिखा है ना यहाँ पे, willfully represent. willfully represents आ गया, कवर हो गया. willful representation है, misrepresentation है. That willful represents to A that C is Z, and thereby intentionally causes A to apprehend C. To apprehend C. Here B abets by instigation the apprehension of C. Here B abets by instigation the apprehension of C. अब देखिए, उसको इंस्टिगेशन में कवर कर लिया. हो सकता है यही इलस्ट्रेशन एज इट इज आपसे पूछ दे, और पूछा है उन्होंने 2015 के एग्जाम में, 18 के एग्जाम में. यही इलस्ट्रेशन हो सकता है उठा के एज इट इज वो आपसे पूछ दे, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी. ओके, आई हैव गिवन द प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, कि आपको सिर्फ बेयर एक्ट की क्लैरिटी रखनी है. 3 चीजों पे आप फोकस कर लीजिए, आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट, बेयर एक्ट एंड इलस्ट्रेशन. सेकेंड, पर्टिकुलर मैग्जिम्स, जो लास्ट के आप 5 पेपर उठाइए यूपीएपीओ के, एपीपी के, जितनी मैग्जिम्स पूछी गई हैं उसको नोट कर लीजिए. ऑफ कोर्स वी वुड सप्लाई दैट, बट यू हैव टू जस्ट पिक एंड चूज. उसी मैग्जिम्स में से आपके क्वेश्चन आएंगे. एंड द लैंडमार्क जजमेंट्स, कुछ नए जजमेंट आए होंगे, कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो जजमेंट पूछे हैं. 303 का जजमेंट पूछता है. ठीक है, इसके बाद आपका अगर आईपीसी की हम बात करते हैं तो रेप के ऊपर जो जजमेंट्स आए हैं उस पर पूछ लेगा. ठीक है, कोई अभी रीसेंट जजमेंट आया होगा, लैंडमार्क जजमेंट आया होगा, उस पर पूछ लेगा. 497 पे जजमेंट आया है, 377 पे जजमेंट आया है. ठीक है, इस तरह के जजमेंट्स पूछ लेगा. लाइक वाइज हो सकता है वो जीएस में आपसे सबरीमाला पे पूछ ले, हो सकता है वो किसी और चीज़ पे जजमेंट पूछ ले जो लैंडमार्क जजमेंट कोई दिया है सुप्रीम कोर्ट ने. ठीक है, तो अगर ये 3 चीज़ें आप प्रिपेयर कर लेते हैं, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग योर preliminary examination. Specifically, I am talking about this law portion. Maxims, your Bayer Act and illustration, and the landmark case laws. That's it. इतनी ही requirement है, आप पेपर उठा के देख लीजिए. Okay? Explanation 2. Whoever either prior to or at the time of the commission of an act does anything, this is very important to know, does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitates the commission thereof, is said to aid the doing of that thing.
अगर आपने ऑफेंस को करने में और ऑफेंस जो हुआ है उसको करने में एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस और बिफोर दैट, इफ यू हैव गिवन एनी असिस्टेंस, उसको मर्डर करने के लिए छत पे चढ़ना है, यू हैव प्रोवाइडेड द लैडर, दैट इज ऑल्सो इंटेंशनल एड. ओके, फाइटिंग इज गोइंग ऑन, यू हैव प्रोवाइडेड द पिस्टल, दैट इज ऑल्सो इंटेंशनल एड. राइट? So if you have provided any help and because of your help actually the offense was committed, so in that case you will be covered in intentional aid, abatement by intentional aid. ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है. So I hope this definition clause is clear to you. Now coming to the point जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स और मेंस के. ओके, दैट इज योर सेक्शन 108 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके मेंस में भी आएगा, आपके प्रीलिम्स में भी आएगा. ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं. 108, दिस इज एन ऑफेंस. 108 जो है वो ऑफेंस है. 108 पे एपीओ में तो नहीं, लेकिन जुडिशरी में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है. दैट विच इज द फर्स्ट सेक्शन, समटाइम्स इन इंटरव्यू ऑल्सो, विच इज द फर्स्ट सेक्शन इन आईपीसी from where the category of offenses starts, जहां से ऑफेंस स्टार्ट होता है. तो ये पहला सेक्शन है आपका 108, यहीं से ऑफेंस शुरू होता है. बहुत सारे लोग 107 आंसर करके चले आते हैं. चैप्टर 5 वहां पे है, चैप्टर 5 और 107 ये रॉन्ग आंसर है. 107 डेफिनेशन क्लॉज है. 108 इज एन ऑफेंस, ये एक ऑफेंस है, इसमें ऑफेंस को बताता है. 108 की पनिशमेंट मिलती है आपको 109 में, इसलिए 108 इज एन ऑफेंस. ओके, तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है. 108 अबेटर. अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स either the commission of an offense or the commission of an act which would be an offense. A person abets, जब abets की बात होती है तो इसको आप क्लियरली कनेक्ट कर लीजिए 107 से. तीन चीजें इसमें अपने आप आ जाएंगी. इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और इंटेंशनल एड. अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु ईदर अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जो डायरेक्टली क्या अबेट करता है, किसी भी ऑफेंस का कमीशन, किसी भी ऑफेंस का होना अबेट करे, ऑफेंस का. नाउ व्हाट इज ऑफेंस, दैट यू मे रिलेट विद सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी. इसमें डिफाइन किया हुआ है कि एनीथिंग दैट इज पनिशेबल बाय आईपीसी और स्पेशल लॉ और लोकल लॉज. ओके, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और द कमीशन ऑफ एन एक्ट which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abater. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इसको डीप अंडरस्टैंडिंग में मत जाइए. ठीक है, ये मत सोचिए कि पूरा मेंस आपको यहीं पे पढ़ा देगा, पूरा मेंस का क्वेश्चन यहीं पूछ देगा. इससे आपको ये देखिए, यू हैव टू एक्ट स्मार्टली. यहाँ पे ये इतने डीप में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है. सिर्फ और सिर्फ आप ये सेक्शन की क्लैरिटी रखिए. 108 में अबेटर को डिफाइन कर रहा है और बोल रहा है अबेटर दो लोग होते हैं. कौन कौन से दो लोग? पहला कौन है? जो किसी ऑफेंस के कमीशन को अबेट कर दे. ठीक है, अबेट कैसे करेगा वो उसके कंडक्ट पे डिपेंड करेगा, एक्ट पे डिपेंड करेगा, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और इंटेंशनल एड. ठीक है, किसी ऑफेंस के कमीशन को अबेट कर दे. सेकंड, वो किसी एक्ट को अबेट करे. एक्ट को कर रहा है मतलब ये ऑफेंस नहीं है, इट इज नॉट एन ऑफेंस, ये ऑफेंस नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर ये चीज कोई नॉर्मल पर्सन कमिट करता, हमारे आपके जैसा कोई कर दे कमिट, नॉर्मल सर्कमस्टांस में कोई नॉर्मल इंटेलिजेंस का आदमी कोई अडल्ट कर दे, तो ये ऑफेंस बन जाएगा, मान लिया जाएगा, तो तब भी वो अबेटर कहलाएगा. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा. ए अबेट्स बी, ये भी क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछते हैं. बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे आपको लगेगा इतना इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन चूंकि हमने पहले से एक इमेज बना रखी है कि डिफिकल्ट ही आना है,
ऐसा क्वेश्चन आना कि क्लियर ही नहीं होगा, बाद में आप जब एग्जाम देने जाओगे तो वो डिफिकल्ट नहीं आएगा, इजी आएगा जो आप छोड़ के गए हो। ए abets B to commit theft, फॉर एग्जाम्पल, चोरी का ले लेते हैं एग्जाम्पल। जो B है यहां पे, ठीक है, दिस B एक बच्चा है 7 साल से छोटा, बिलो 7 years। अब जब 7 साल से छोटा एक बच्चा है B, तो वो तो कोई ऑफेंस करेगा नहीं। अब अगर इसने चोरी कर भी दी तो ये चोरी थोड़ी मानी जाएगी, क्योंकि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड बिलो 7 years। लेकिन जो अबेटर है ये इसके सेकंड क्लॉज में कवर हो जाएगा। कि कौन से क्लॉज में? और द कमीशन ऑफ एन एक्ट, इस वाले में, कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abetter। ठीक है, अगर यही चीज ये B 7 साल का बच्चा ना होता, एक अडल्ट होता, ठीक है, Z, और वो इसके अबेटमेंट के बाद इसी के इंटेंशन के साथ जाकर के ये चोरी कर देता, तो ये जो एक्ट B ने किया है इट विल बी ट्रीटेड इक्विवेलेंट टू द एक्ट ऑफ Z, and that is why A will be liable in the same manner। क्यों? क्योंकि वो कहता है अबेटर वो पर्सन होता है who abets an offense। ठीक है, try to understand this, if you have any problem you can drop your query in the chat box। वो कहता है who is an abetter? abetter is a person who abets an offense। लेकिन अगर कोई बच्चा किसी एक्ट को कर रहा है जो 7 ईयर से कम है, या कोई इंटॉक्सिकेटेड पीपल कर रहा है हु इज नॉट इन हिज सेंसेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 84, ओके, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अगर कोई एक्ट कर रहा है गुड फेथ में, तो वो सारे ऑफेंस नहीं माने जाते। और जब तक आप ऑफेंस अबेट नहीं करेंगे आप अबेटर नहीं होंगे। तो इसका मिसयूज किया जा सकता था। सपोज पीपल देन पीपल वुड ट्रेन द चिल्ड्रेन और द पर्सन हु आर नॉट मेंटली स्टेबल, एंड देन they can cause the act done by them, through them। बच्चे को टेररिस्ट की ट्रेनिंग दे दी और उससे जो है ऑफेंस करवा दिया। बच्चा अगर पकड़ा भी गया छूट जाएगा, क्योंकि हमारे यहां लॉ है, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मिसयूज होता, इसीलिए दे हैव ड्राफ्टेड इट वेरी वेरी पर्टिकुलरली, इफ कमिटेड बाय अ पर्सन कैपेबल बाय लॉ। उन्होंने कहा ठीक है बच्चा बी ने एक्ट कर दिया, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, लेकिन अबेटर आप तब भी माने जाओगे। तो ये चीज उन्होंने डेफिनेशन में ही डाल दी। क्लियर? तो दो तरह से आप अबेटर, एक तो आपने ऑफेंस को डायरेक्ट अबेट कर दिया और हो गया, आपने ऑफेंस को नहीं किया, किसी एक्ट का अबेटमेंट किया, स्मार्टली, स्मार्ट बन रहे थे आप, तो उस केस में क्या होगा, पहले लॉ चेक करेगा कि अगर बी की जगह हम किसी अडल्ट को रख दें, किसी सेन पर्सन को रख दें, तो क्या ये ऑफेंस माना जाएगा? अगर वो ऑफेंस माना जाएगा यू विल बी लाइबल एज एन अबेटर, अगर वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा यू विल नॉट बी लाइबल एज एन अबेटर। क्लियर? ये दिया हुआ है आपकी डेफिनेशन ऑफ अबेटर। इस पे आपके क्वेश्चन आते हैं तो इसको याद रखिएगा। हो सकता है वो आपसे ऐसे क्वेश्चन कर दे दैट ए अबेट्स बी एंड बी इज अ चाइल्ड बिलो 7 years, वेदर ए विल बी लाइबल एज एन अबेटर और नॉट। यस, ए विल बी लाइबल। ठीक है, इसको मैं आपको फिर से कह रहा हूं, हम जितना सोच के जाते हैं कि एग्जामिनर इस लेवल पे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर क्या करता है, वो एक एवरेज इंटेलिजेंस के हिसाब से पेपर सेट करता है। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको इसमें अगर मुझे क्वेश्चन बनाना हो डिफिकल्ट, तो मैं इसमें बहुत अच्छा एक क्वेश्चन डिफिकल्ट बना सकता हूं आपके लिए। और वो क्वेश्चन क्या होगा? वो क्वेश्चन ये मैं बना दूंगा दैट ए प्रोवाइडेड इंटेंशनल एड टू बी एंड बी इज अ चाइल्ड बिलो 7 years, बी has committed the offense, whether A will be liable for abatement or not, whether A will be liable for abatement or not, ये डाल दूंगा मैं उसमें कि A liable होगा या नहीं होगा अबेटमेंट के लिए। अब आप आंसर करिए इसको। अब आप घूमने लगेंगे कि अरे इसमें तो इंटेंशनल एड आ गया, या हो सकता है मैं लिख दूं ऑफेंस हैज नॉट बीन कमिटेड, सिंपल हो जाएगा, A लाइबल नहीं होगा। ऑफेंस कमिट हो गया, ए लाइबल होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बी 7 years के लिए, 7 years का बच्चा है। ठीक है, तो इस तरह से
आपको लगता होगा कि वो बहुत डीप क्वेश्चन पूछ देगा, नहीं, वो इसी से पूछेगा, वो सिंपल यहीं से उठाएगा क्वेश्चन और बना देगा, इन्हीं लाइन से बना देगा, वुड बी एन ऑफेंस से, यहीं से क्वेश्चन आपके लिए बना देगा वो। ओके, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन 1, द अबेटमेंट ऑफ एन इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट may amount to an offense although the abater may not himself be bound to do that act। ठीक है, इसको समझ लीजिए, the abatement of the illegal omission of an act may amount to an offense although the abater may not himself be bound to do that act। ठीक है, मैंने बहुत बार इन चीज़ों के लिए एग्जाम्पल्स बनाए हैं, आपको भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप वाटर पार्क गए, वाटर पार्क में बहुत बड़ी बड़ी स्लाइड्स होती हैं, ठीक है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस लगे होते हैं, 100 फीट की स्लाइड ऐसे होती है, आप वहाँ जाते हो तो ऐसे करके आप नीचे गिरते हो हवा में, ठीक है ना। और उन स्लाइड्स पे जब आप आ रहे होते हो नीचे तो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर खड़ा रहता है, ठीक है, और वो इंस्ट्रक्टर आपको बताता है कि आपको दोनों हाथ ऐसे करने हैं, चिन ऐसे करना है, लेग्स को क्रॉस करके रखना है ताकि वाटर फ्लो आप क्रॉस करते हुए जो वाटर क्या ऑब्स्ट्रक्शन आएगा क्रॉस करते हुए आगे निकले। और इसके बाद उसने कहा बॉडी को मूव नहीं करना है, कपड़े आपके नायलॉन के होने चाहिए, कॉटन नहीं होना चाहिए, फंस गया तो क्या होगा कि हो सकता है कि फिर वहाँ पे कुछ एक्ट ऐसा हो जाए जिससे आपकी लाइफ को डेंजर हो। वो कहते हैं आप बैंगल्स पहन के नहीं जा सकते, चेन पहन के नहीं जा सकते, उसका रीज़न होता है। रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है आपने बैंगल पहना, आप स्लाइड में जा रहे हो सकता है वहाँ पे इतना ज़्यादा फोर्स हो वाटर का कि वो हाथ आपका मुड़ गया और बैंगल से आपका हाथ यहाँ पे कट गया, तो पूरी तरह से वहाँ पे एक तो ब्लड आएगा, प्लस हो सकता है उस पानी में इतना हाथ कट गया हो कि इट मे बी डेट्रीमेंटल टू योर बॉडी और इट मे अफेक्ट योर लाइफ ऑल्सो। तो ये सारी ड्यूटी होती है वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर खड़ा होता है स्लाइड्स पे, ये सारी ड्यूटी होती है जब आप कोई एडवेंचर करने जाते हो। आप सपोज आप वाटर राफ्टिंग के लिए गए, वहाँ पे आपको पहले ब्रीफ किया जाता है, आप ऐसे नहीं करेंगे, अगर आप पानी में गलती से बोट से बाहर चले गए तो आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, समथिंग लाइक दैट। आप चिल्लाएंगे नहीं क्योंकि वाटर फिर आपके अंदर जाएगा जिससे चोक हो जाएगा गला, हो सकता है कि फिर आप डूब जाए, आपकी जैकेट खुल जाए। आपको क्या करना है, काम रहना है, हम पीछे से आपके आके आपको सेव कर लेंगे। आपको किसी भी हाल में अपना वो बताएगा कि इसको इस तरह से होल्ड करते हैं, इसको इस तरह से होल्ड करते हैं, समथिंग लाइक दैट। यहां पे ये बात ये कर रहा है, अगर वो अपनी ड्यूटी ना करे, ठीक है, वो अपनी ड्यूटी ना करे, उसे पता है कि अगर मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा तो इस स्लाइड से ये बाहर गिर जाएगा 100 फीट से और इसकी डेथ हो जाएगी, उसने जान के आपको इंस्ट्रक्ट नहीं किया, ठीक है, और आप चले गए, ठीक, तो उसने तो डायरेक्ट एक कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर का ऑफेंस किया। लेकिन उसको मैं ऐसा करने के लिए बोल दूं, मैं कहता हूं ऐसा एक काम करो, तुम इसको इंस्ट्रक्ट मत करो, ठीक है, वो तुमसे पूछे तो बता देना, ना पूछे तो इंस्ट्रक्ट मत करना। वेयर एज द abatement of the illegal omission of an act may amount to an offense although the abater may not himself be bound to do that act. He is bound to do it. He is bound to do it. Okay? He is bound to explain and give the instruction to each and every person who is going to the water park, who is going for the rafting, who is going for any kind of adventurous act. ठीक है? आप बंजी जंपिंग करने जाते हैं, आप पैराग्लाइडिंग करने जाते हैं, ठीक है, पैरासेलिंग करने जाते हैं, स्काई डाइविंग करने जाते हैं, तो आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं हर जगह, ठीक है। अब आप जाकर के पूछते तो नहीं है ना कि भैया जरा बताओ इसके क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, और आप पूछोगे तभी वो बताएगा, नहीं ऐसा नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल। उसकी ड्यूटी है कि कोई भी आए तो ये इसको इंस्ट्रक्ट करे तुरंत कि आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है। आप हेलीकॉप्टर में बैठेंगे तो आपको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि लूज क्लोथ्स अगर आपके हैं तो बांध लें, क्योंकि हो सकता है हेलीकॉप्टर के उड़ते टाइम या कुछ टाइम पे वो पायलट आपके बगल जो बैठा है उसके आंखों पे चला जाए, ना दिखे उसे, कुछ ऐसा हो जाए, समथिंग लाइक दैट। अब द पर्सन हु इज बाउंड टू गिव यू इंस्ट्रक्शंस, इफ ही हिमसेल्फ इज नॉट गिविंग द इंस्ट्रक्शन, दैट इज हिज फॉल्ट, इट इज डायरेक्ट ऑफेंस। मैं जाता हूं और मैं इंस्ट्रक्टर को कहता हूं इसको इंस्ट्रक्शन मत देना, डोंट गिव हिम इंस्ट्रक्शन,
Now I'm not asking him to do something, rather I am asking him not to do something. That is illegal omission. Okay, you must have read in the definition. Illegal omission है. Okay, जिस चीज के लिए वो बाउंड था वो नहीं कर रहा है. मुझे नहीं पता कि इंस्ट्रक्शन ये देते हैं या नहीं देते हैं, फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूं. Now in such act, if I can give the instigation for doing something, if I am giving the instigation to someone for not doing something, that is also an abatement. Clear? वो भी एक abatement है. मैं लाइफ गार्ड को कहता हूं इंस्ट्रक्शन मत देना ताकि ये स्लाइड से नीचे जाए मर जाए. ठीक है, लाइफ गार्ड इंस्ट्रक्शन नहीं देता है तो मेरा यहां पे अबेटमेंट हुआ. लाइफ गार्ड तो मर्डर कल्पेबल होमिसाइड के लिए वो तो डूअर है, वो तो चार्ज होगा ही होगा. दिस इज द लॉ ऑफ अबेटमेंट. सो दे हैव वाइडन द स्कोप ऑफ लॉ ऑफ अबेटमेंट. सो हो सकता है आपसे एक्सप्लेनेशन ये वर्ड टू वर्ड डाल दे आपके क्वेश्चन में, वर्ड टू वर्ड. ओके, द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट और नॉट, वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग, करेक्ट और इनकरेक्ट. तो दे देगा ऑप्शन, असर्शन रीजन में दे देगा इसको उठा के आपके. ओके, कि ये प्रिंसिपल है, ये इसका रीजनिंग है, ये असर्शन है, ये रीजनिंग है, बताइए ये सही है या गलत है. ठीक है, सो आपको जब तक ये प्रोविजन नहीं पता होगा आप इसको जान नहीं पाएंगे. राइट? तो अबेटमेंट फॉर डूइंग एन एक्ट इज ऑल्सो एन अबेटमेंट. अबेटमेंट फॉर नॉट डूइंग समथिंग, आस्किंग समवन फॉर नॉट डूइंग समथिंग फॉर विच ही इज ड्यूटी बाउंड, इलीगल लगा है वर्ड, वो भी एक अबेटमेंट होता है. ठीक है, तो बस इतनी चीजें आप क्लियर रखिएगा माइंड में क्योंकि इन पे क्वेश्चंस आते हैं. एक्सप्लेनेशन 2, to constitute the offense of abatement, it is not necessary that the act abated, this is very important, that the act abated should be committed, or that the effect requisite to constitute the offense should be caused. Effect requisite to constitute the offense should be caused. Okay, अब देखिए इसको भी आपको समझना पड़ेगा. To constitute the offense of abatement, it is not necessary that the act abated should be committed. क्या कह रहा है? Act abated should be committed. जो एक्ट अबेट हुआ वो कमिट नहीं हुआ ये जरूरी नहीं है. मैंने आपको बोला था चोरी करने के लिए, आप ट्रेसपास किया, आपको गार्ड ने पकड़ लिया. ठीक है, एक्ट कुछ हो गया. आप कह सकते हैं भाई मैंने तो चोरी के लिए इसको बोला था, इसने तो की ही नहीं चोरी, तो फिर कहां से एक्ट हुआ? जब अबेटमेंट ही नहीं हुआ, एक्ट हुआ ही नहीं तो अबेटमेंट नहीं. तो लॉ ने कहा नहीं, ये जरूरी नहीं है. हम एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इसकी डेफिनेशन को हम वाइडन कर रहे हैं. ओके, यू विल स्टिल बी लायबल फॉर अबेटमेंट. टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड और दैट द इफेक्ट रिक्विजिट, चोरी के लिए भेज रहे थे, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड, ये भी जरूरी नहीं है. ठीक है, तो हो सकता है एपीओ में वो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे, यही एज इट इज एक्सप्लेनेशन उठा के पूछ देगा कि बताइए जरूरी है या नहीं फॉर द लॉ ऑफ अबेटमेंट, वेदर टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट, इज इट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड. आंसर वुड बी नो. वो दे देगा यस, नो, ओके, डोंट नो और नन ऑफ द अबव, समथिंग लाइक दैट, ए और बी बोथ डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांस. तो ये आपको क्लियर रखना पड़ेगा. अब इसमें आपको जो चीज जाननी है, अभी मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में पढ़ाया था कि 3 तरह से आप अबेटमेंट कर सकते हैं. इंस्टिगेशन, इंटेंशनल एड, कॉन्स्पिरेसी. या ऐसे कर लीजिए, कॉन्स्पिरेसी, इंटेंशनल एड, ठीक है. इसमें मैंने आपको बताया था ओवर्ट एक्ट की जरूरत नहीं है. इसमें थोड़े भी एक्ट हो जाएंगे तो हो जाएगा. इसमें जिस एक्ट के लिए आपने एड दिया है वही होना चाहिए. और यहां देखिए एक्सप्लेनेशन 2 तो बिल्कुल अपोजिट कह रहा है. ये कह रहा है फॉर द ऑफेंस टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड और दैट द इफेक्ट रिक्विजिट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड. ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है. तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है. यू हैव टू मेंटेन दी नेक्सस, यू हैव टू स्टैब्लिश दी नेक्सस. ये बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इंस्टिगेशन के लिए. इंस्टिगेशन के केस में
इन केस ऑफ इंस्टिगेशन, इन केस ऑफ इंस्टिगेशन आपको क्या करना है, एक्ट हो या ना हो आप लाइबल हो जाएंगे। इसी का इलस्ट्रेशन, ये बहुत कॉमन इलस्ट्रेशन है और ये एग्जाम में जरूर आता है। सो योर एक्सप्लेनेशन 2 इज नॉट एप्लीकेबल टू योर मोड ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड, इस पे अप्लाई नहीं करता, क्योंकि इन दोनों के लिए एक्ट मैंडेटरी है। इसमें कुछ ही एक्ट हो, इसमें वही एक्ट हो, लेकिन होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये एक्सप्लेनेशन उस पर अप्लाई नहीं करता। ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ किसके साथ पढ़ा जाता है, इंस्टिगेशन के साथ, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कहा जाता है इंस्टिगेशन इज दी डेंजरस फॉर्म ऑफ अबेटमेंट। एक बार आपने इंस्टिगेट कर दिया, एक्ट हो या ना हो, आपकी पनिशमेंट हो जाएगी। ओके, सो देखिए फिर से इसको पढ़िए, अब हो सकता है आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड or that the effect requisite to constitute the offense should be caused. Now if you look at the illustration you will get to know A instigates B to murder C, B refuses to do so, A is guilty of abating B to commit murder. ये as it is illustration APO एग्जाम में पूछा है prelims में, as it is, ठीक है। यहां तक आपको दे देगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है तो आप आंसर गलत करके चले आएंगे। आपको ये क्वेश्चन बना के देगा, क्वेश्चन में सिर्फ इतना देगा, A instigates B to murder C, B refuses to do so, A is guilty of offense of murder, offense of attempt to murder, offense of abatement, none of the above। ये 4 ऑप्शन दे देगा आपको। और अगर आपने एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ा है, आपने 107 की डेफिनेशन पढ़ी है सिर्फ बेयर एक्ट से, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई केस लॉज नहीं, तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा और आप ये क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे, ठीक है। हो सकता है अगर 1-2 नंबर से आप इन आउट हो रहे हो तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये भी अबेटमेंट है और आप इसीलिए देखो आप इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हो। दोनों इलस्ट्रेशन में सिर्फ इंस्टिगेट्स लिखा है, कहीं कॉन्स्पिरेसी या इंटेंशनल एड की बात नहीं किया है, ओनली इंस्टिगेशन, ठीक है। सिर्फ इंस्टिगेशन लिखा हुआ है और कुछ नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन पे अप्लाई करता है और किसी मोड पे ये अप्लाई नहीं करता है। तो ये दोनों इलस्ट्रेशन आप एक भी नहीं छोड़िएगा, चाहे वो एविडेंस हो, सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, कवर टू कवर इंपॉर्टेंट जितने पार्ट आप पढ़ रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, जितना भी आपको बताया जा रहा है या आप खुद से पढ़ोगे, किसी भी पोर्शन का इलस्ट्रेशन आपको नहीं स्किप करना है, क्योंकि एज इट इज इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन बन जाते हैं, एज इट इज इलस्ट्रेशन को क्वेश्चन बना दिया जाता है। ओके, अब देखिए एक्सप्लेनेशन 3 क्या है। Explanation 3, it is not necessary that the person abated should be capable by law of committing an offense or that he should have the same guilty intention or knowledge as that of the abater। आपको अगर explanation 3 पढ़ना है तो मैं आपको बताता हूं, इसका बहुत सिंपल तरीका है। इसको आप कोरिलेट कर दीजिए 108 की डेफिनेशन के पार्ट से, सेकेंड पार्ट से। दिस इज योर explanation 3, ओके, ये आपका explanation 3 है। और आप डेफिनेशन जब देखेंगे ऑफ योर 108, यू विल फाइंड इन 108 इट इज रिटन अ पर्सन who abets either the commission of an offense, that is one part, or the commission of an act which would be an offense is if committed by a person capable by law of committing an offense। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है, if committed जो लिखा है इसने वर्ड, उसका कहने का ये मतलब है कि अगर ये इनकेपेबल पर्सन ने भी कर दिया ये ऑफेंस तो भी आप अबेटर की तरह लाइबल हो जाएंगे। उसी को ये क्लियर कर रहा है एक्सप्लेनेशन 3 में। सो एक्सप्लेनेशन 3 इज एक्चुअली सपोर्टिंग द सेकंड पार्ट ऑफ 108। जो एक्सप्लेनेशन 3 है वो सेकंड पार्ट ऑफ 108 को क्लियर कर देता है, ठीक है। वो क्या कहता है, इट इज नॉट नेसेसरी, वो कह रहा है इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन abated should be capable by law of committing an offense or that he should have the same guilty intention or knowledge as that of the abater or any guilty intention or knowledge। तो जो इसका सेकंड पार्ट है 108 का वो बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है इससे, इसके पहले पार्ट से। फर्दर एक्सटेंशन में वो कहता है
ये भी जरूरी नहीं है कि अगर मुझे किसी ने अबेटमेंट दिया, हो सकता है मेरा गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज ना हो सकता है मेरा मेंसरिया ना हो, डूअर का ना हो। यहां पे बात बस ये हो रही है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि यही 2-3 आपके सेक्शंस हैं, पार्ट्स हैं जिसमें आपको समझना है प्रीलिम्स के लिए। वो कह रहा है ए है और बी है, ये दो हैं। ए जो है वो अबेटर है, ही इज अबेटर, बी इज पर्सन अबेटेड, ओके, इज पर्सन अबेटेड। हो सकता है बी लाइबल हो ऑफेंस के लिए, हो सकता है बी लाइबल ना भी हो ऑफेंस के लिए, हो सकता है बी जो है उसको पता ही नहीं है कि ए ने किस एक्ट के लिए उसको बोला है, राइट एक्ट्स के लिए बोला है या रॉन्ग एक्ट के लिए बोला है। रॉन्ग एक्ट की नॉलेज है तो भी ए लाइबल, रॉन्ग एक्ट की नॉलेज नहीं है तो भी ए लाइबल। दैट इज व्हाट इज गिवन इन एक्सप्लेनेशन 32108। बहुत सिंपल वे में, बहुत सिंपल वे में, पूरी बात ही यही है। वो कह रहा है कि बी की लाइबिलिटी डिसाइड नहीं करेगी ए लाइबल होगा या नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। द लाइबिलिटी ऑफ बी would not decide the liability of A, that is abater. That is very clear by explanation 3. A की liability वही होगी जो as per 107-108 में बनेगी, that's it. B liable होता है या नहीं होता है, that is the thing, that is a fact totally immaterial with respect to the liability of abater. यही दिया है आपके explanation 3 में, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए इसको कंप्लीट। It is not necessary that the person abated should be capable by law of committing an offense. 108 के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया इसने। आप बच्चे से ऑफेंस करा लीजिए, कोई बात नहीं, आप लाइबल हो जाएंगे। और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर। आई एम द अबेटर, आई अबेटेड समवन। मैंने उससे कहा एक काम करो, वो जो कंप्यूटर रखा हुआ है ना वो ले आओ, वो जो एसी का रिमोट रखा हुआ है वो ले आओ, वो जो मोबाइल रखी हुई है वो मेरी मोबाइल है, ले आओ। मैंने आपको अबेट कर दिया, आप गए और आप अपना मोबाइल लेके चले आए। एक्चुअल में चोरी किसने की? आपने। लेकिन आपका ऐसा कोई गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज नहीं था चोरी करने का, रॉन्गफुल गेन करने का आपका कोई इंटेंशन नहीं था। मेरा इंटेंशन था, आई न्यू द फैक्ट कि वो मोबाइल फोन, वो एसी का रिमोट, ये कंप्यूटर, ये माउस मेरा नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए। मेरा नाम ना आए इसलिए मैंने आपको आगे कर दिया, या बच्चे से करा दिया, बच्चे को बोल दिया जाओ तुम लेके चले आओ। Are you getting the point? Still I would be liable as an abater. वो तो निकल जाएगा, वो कह देगा सर मुझे तो पता ही नहीं था ये किसका है, इन्होंने कहा इनका इसलिए मैं ले आया, तो वो तो बच जाएगा क्योंकि वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में एक्ट कर गया, गुड फेथ में उसने एक्ट किया, कोई मेंसरिया उसके पार्ट पे नहीं है, कोई उसका इंटेंशन नहीं है, रॉन्गफुल गेन का कोई इंटेंशन नहीं है, नथिंग। बट वो बच गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बच जाओगे। वही चीज एक्सप्लेनेशन 3 में दी हुई है, दैट द लाइबिलिटी ऑफ द person abated, okay, or the doer of the offense, the accused, would not decide the liability of abater. उससे अबेटर की लाइबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अबेटर की लाइबिलिटी तो अबेटर के एक्ट पे डिपेंड करेगी, ओके। इसकी इलस्ट्रेशन देख लीजिए, इसमें 4 इलस्ट्रेशन है। इसका जो डी इलस्ट्रेशन है और बी इलस्ट्रेशन है ये एग्जाम में आता है। जनरली इस पे मेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप प्रीलिम्स के लिए भी इसको देख लीजिएगा, इलस्ट्रेशन सारे पढ़ लीजिएगा। एक बार रीड कर लेते हैं बस। ए विद अ गिल्टी इंटेंशन अबेट्स अ चाइल्ड और अ ल्यूनेटिक टू कमिट एन एक्ट which would be an offense if committed by person capable of law by law of committing an offense and having the same intention as A. Here A, whether the act be committed or not, is guilty of abating an offense. As simple as that. Okay? A with guilty intention, A की guilty intention थी बच्चे को या किसी lunatic को, ठीक है, जिसको समझ नहीं थी, उसको अबेट कर दिया ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस। उससे बोला चोरी करो, बिल्कुल, इट वुड बी एन ऑफेंस इफ कमिटेड बाय अ नॉर्मल पर्सन, नॉट बाय द चाइल्ड, एंड हैविंग द सेम इंटेंशन एज ए। Here A, whether the act be committed or not, is guilty of abating an offense. तो एक्ट कमिट हो या ना हो वो ऑफेंस के लिए गिल्टी हो जाएगा, उसका इंटेंशन हो या ना हो अबेटर लाइबल हो जाएगा।
बी देखिए, A with the intention of murdering Z instigates B, a child under 7 years of age, to do an act which causes Z's death. अब देखिए यहाँ पे वो बता रहा है Z की डेथ हो गई, एक्ट भी हो गया, बट किया किसने? एक 7 साल से कम के बच्चे ने. B in consequence of abatement does the act in absence of A and thereby causes Z's death. Here, though B was not capable by law of committing an offense, A is liable to be punished in the same manner as if B had been capable of by law of committing an offense and had committed murder, and he is therefore subject to the punishment of death. Okay? So वो कह रहा है कि बच्चे ने कर दिया, वो तो बच जाएगा, ये तो बच जाएगा, बच्चा तो बच जाएगा, बट आप अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए लाइबल हो जाओगे. वही मैंने आपको कहा, डूअर की लाइबिलिटी डिफाइन नहीं करेगी कि अबेटर की लाइबिलिटी क्या होगी. ओके, सी देखिए, ए इंस्टिगेट्स बी टू सेट फायर टू अ ड्वेलिंग हाउस. ए ने बी को इंस्टिगेट किया और बोला कुछ लोग रह रहे हैं घर में, उसमें जाके आग लगा दो. बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ हिज माइंड, इनकेपेबल यहां पे है, वो भी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंड माइंड का है. बीइंग कैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट or that he is doing what is wrong or contrary to the law, sets fire to the house in consequence of A's instigation. B has committed no offense. B ने कोई offense नहीं किया. क्यों? क्योंकि वो कवर हो जाएगा सेक्शन 84 में, अनसाउंड माइंड में. ठीक है, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा. लेकिन याद कीजिए इलस्ट्रेशन, ऑफेंस हो ना हो, अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स ईदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस or who abets an act which would be an offense if committed by a person capable by law. तो ये capable by law नहीं है, लेकिन फिर हम चेक करेंगे तुरंत कि अगर B अनसाउंड माइंड का नहीं होता, एक साउंड माइंड वाला यही एक्ट करता अबेटमेंट के बाद, तो क्या ऑफेंस होता? इफ यस, ऑटोमेटिकली अबेटर की लाइबिलिटी हो जाएगी. B has committed no offense, but A is guilty of abating the offense of setting fire to a dwelling house and is liable to punishment provided for that offense. Clear? डी देख लीजिए. ये मैं इलस्ट्रेशन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये पूछे जाते हैं एज इट इज, ये मेंस में भी आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं. ए इंटेंडिंग टू कॉज अ थेफ्ट टू बी कमिटेड इंस्टिगेट्स बी टू टेक प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड्स पोजेशन. ए induces B to believe that the property belongs to A. B takes the property out of Z's possession in good faith, believing it to be A's property. B acting under the misconception, that is mistake of fact, does not take it dishonestly, there is no intention to gain wrongfully, and therefore does not commit theft. But A is guilty of abating theft and is liable to the same punishment as if B had committed theft. Okay? So यहाँ पे सिंपल बात है, मैंने जिससे एक्ट कराया उसका गिल्टी इंटेंशन नहीं था, वो तो ये गुड फेथ में एक्ट किया उसने, मिसकॉन्सेप्शन में किया, लेकिन मैंने विलफुली मिसरिप्रेजेंट किया था. मैंने उसको कहा वो मेरा मोबाइल है, लेके आओ, जबकि वो मोबाइल किसी और का था. ओके, सो वहां पे लाइबिलिटी हो जाएगी. राइट? एक्सप्लेनेशन 4 देखिए. अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दो इट विल नॉट बी आस्क्ड इन योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, बट फिर भी आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए. द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन ऑफेंस इज ऑल्सो, सच एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस. ये सिंपली कह रहा है ए ने अबेट किया बी को, go and abet C to commit murder of D. ठीक है, सिंपल वे में आप समझना चाहें, अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन अबेटमेंट. ओके, लेकिन वो होता कैसा है मैं आपको बता देता हूं. इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए. एक पार्ट ये हो गया B abet C to commit murder of D. तो ये एज पर 108 B has become अबेटर. ये अबेटर बन गया B, एक ऑफेंस कर दिया इसने 108 का. ठीक है, अब आप देखो यहां पे ये तो अबेटर हो गया, एक ऑफेंडर बन गया ये बी. ए जो है वो बी को अबेट कर रहा है, कौन सा ऑफेंस करने के लिए? कि तुम अबेटमेंट का ऑफेंस कर दो, अबेटर बन जाओ. और अबेटर बनना क्या होता है? एक ऑफेंस होता है. अबेटर इज एन ऑफेंस 108, अभी मैंने आपको बताया. सो एक्चुअली ए इज अबेटिंग बी
to commit an offense, and that offense is to abet C and be an abater, become an abater. And making someone abater is an offense, क्योंकि abater अपने आप में एक offense है, abatement करना एक offense है. तो आप कौन सा offense abet कर रहे हैं? B को abatement करने के लिए आप बोल रहे हैं. ठीक है, आप कह रहे हैं B को abatement करने के लिए हम बोल रहे हैं, इसलिए B abater हो गया. तो यहां पे जो A ने ऑफेंस अबेट किया वो हो गया अबेटर बनाना, टू मेक बी अबेटर, और अबेटर एक ऑफेंस होता है 108. तो इसकी जो लाइबिलिटी हुई वो एक्सप्लेनेशन 4 में हो गई, एक्सप्लेनेशन 4 में हो गई आईपीसी के 108 के. और ये 108 में डायरेक्टली है क्योंकि बी ने सी को अबेट कर दिया डी का मर्डर करने के लिए. ठीक है, इसीलिए कहा जाता है अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन अबेटमेंट एंड एन ऑफेंस अंडर 108. तो मैंने ऑफेंस करने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा आपको कि जाओ तुम उसको बोलो ऑफेंस करने के लिए. ठीक है, मैं आपको कौन सा ऑफेंस करने के लिए बोल रहा हूं? मैं आपको ऑफेंस करने के लिए बोल रहा हूं कि आप अबेटर बन जाओ, और अबेटर बनना एज पर 108 इज एन ऑफेंस. ओके, तो इसका यही एक्सप्लेनेशन है. आपको इसकी जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि ये प्रीलिम्स में नहीं आने वाला. प्रीलिम्स में वो सिंपल सा बस ये पूछ सकता है abatement of an offense being an offense, whether such an abatement is an offense or not. So you should answer yes. Illustration देख लीजिए इसका, हो सकता है ये illustration ही पूछ दे. A instigates B to instigate C to murder Z. B accordingly instigates C to murder Z, and C commits that offense in consequence of B's instigation. B is liable to be punished for his offense with the punishment of murder, and A instigated B to commit the offense. A is also liable to the same punishment. ठीक है, तो A ने चूंकि इसको अबेटर बनने के लिए B को बोला था, इसलिए A की भी लाइबिलिटी सेम होती है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन 5 देख लीजिए, लास्ट वन 108 आपका कंप्लीट हो जाएगा. एक्सप्लेनेशन 5, इट इज नॉट नेसेसरी टू कमिट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी. इट इज नॉट नेसेसरी टू द commission of the offense of abatement by conspiracy that the abater should concert the offense with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed. This is actually on abatement by conspiracy. सिंपल वे में वो ये बता रहा है, एक कॉन्स्पिरेसी में बहुत सारे लोग हो सकते हैं. हो सकता है आपकी जो कॉन्स्पिरेसी है उसमें A, B, C, D, E इतने लोग हो सकते हैं, और इन सब का एक मोटिव था कि Z का मर्डर करना है. मर्डर कैसे करना है? इसको पॉइजन एडमिनिस्टर करना है. ही इज टू बी एडमिनिस्टर्ड पॉइजन, पॉइजन एडमिनिस्टर करके इसको मारना है. A ने B को बोला कहीं से पॉइजन अरेंज करो. B कंसल्टेड C and told C that since A wants to commit murder, we want to commit murder of Z, so provide us the poison. C, who is having a friend D, he is having a chemist shop. इसने इसको बोला मुझे पॉइजन की ज़रूरत है क्योंकि मेरे दो दोस्त हैं जो मर्डर करना चाहते हैं किसी का. डी ने अपने हेल्पर को ये चीज़ बताई और उससे बोला गोडाउन में जो पॉइजन रखा है, एक केमिकल सब्सटेंस रखा हुआ है, वो ले आओ. वो किसी को देना है, बताना नहीं किसी को, और इसकी स्लिप मत काटना. ठीक है, तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी इन्होंने की. इसको भी पता है मर्डर के लिए जा रहे हैं, इसको भी पता है, इसको भी पता है, इसको भी पता है. ए की कभी सी से बात नहीं हुई, बी की कभी ई से बात नहीं हुई, डी की कभी बी से बात नहीं हुई. बट ये सारे के सारे लाइबल हो जाएंगे किसके लिए? अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी. अबेटर हो गया ए, कॉन्स्पिरेसी में ये सारे आ गए. ठीक है, फॉर कमिटिंग मर्डर ऑफ जेड. यही दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन 5. फिर से इसको देख लेते हैं. It is not necessary to the commission of an offense of abatement by conspiracy that the abater should concert the offense with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed. Okay? A concerts with B a plan for poisoning Z. It is agreed that A shall administer the poison. B then explains the plan to C, mentioning that a third person is to administer the poison. But without mentioning A's name, C agrees to procure the poison
and procure and delivers it to B for the purpose of its being used in the manner explained. A administers the poison, Z dies in consequence. Here, though A and C have not conspired together, yet C has been engaged in the conspiracy in pursuance of which Z has been murdered. C has therefore committed the offense defined in this section and is liable to the punishment for murder. तो सिंपली इस पे जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा दैट इन केस ऑफ लॉ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, इज इट नेसेसरी दैट every conspirator should consult with each other, and the answer is no. तो इस पे वो कुछ भी बना के दे सकते हैं, एक्स वाई जेड ने मिलके प्लानिंग की, इसके बाद ए को उन्होंने एंगेज किया, बी को मर्डर करना था, ए ने मर्डर कर दिया, सी एंड ए हैव नेवर स्पोकन टू ईच अदर, वेदर ए विल बी लाइबल, यस ही विल बी लाइबल इफ ही इज अवेयर अबाउट द ब्रॉड आइडिया, ही विल बी लाइबल. ओके, तो ये आपका बेसिकली 108 है जिस पे आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों पे क्वेश्चंस आते हैं. तो ये सारे इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है. और यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है अपना, बस इलस्ट्रेशन और ये इतने सेक्शंस. इस पे कोई बहुत लैंडमार्क जजमेंट आपको नहीं पढ़ने हैं, इस पे कोई बहुत ऐसी मैगजिम नहीं पूछी जाती है, ये सिर्फ सेक्शन बेस्ड आंसर्स इसमें आपको करने हैं. कमिंग टू 108, गोइंग बाय द सेक्शंस. 108, abatement in India of offences outside India. A person abates an offence within the meaning of this code who in India abates the commission of any act without and beyond India which would constitute an offence if committed in India. सिंपल सी मतलब वो देखिए आपको क्या बताना चाह रहा है. अबेटमेंट इन इंडिया, अबेटमेंट कहाँ हो रहा है? इंडिया में. अबेटर कहाँ है? इंडिया में है, ठीक है. अबेटर कहाँ है? इंडिया में. ऑफ ऑफेंसेज आउटसाइड इंडिया, लेकिन ये जो ऑफेंस के लिए अबेटमेंट कर रहा है वो आउटसाइड इंडिया है. वो कहाँ है? आउटसाइड इंडिया. वो कहाँ हो रहा है? आउटसाइड इंडिया हो रहा है. वो कहाँ हो रहा है? आउटसाइड इंडिया हो रहा है, ठीक है. सो ए ने एक मर्डर जो है अबेट कर दिया ऑस्ट्रेलिया में, और मर्डर हो गया ऑस्ट्रेलिया में. ए बैठा है इंडिया में, ठीक है. इंडिया में ऑफेंस नहीं हुआ, इंडिया में सिर्फ अबेटमेंट हुआ. उसने यहां से फोन किया ऑस्ट्रेलिया, फोन पे उसने बोला अगर तुमने उसे नहीं मारा, ठीक है, तो फिर समझ लो मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाला. या बोला कि तुम उसे मार दो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा. किल हिम, दैट इज अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, ठीक है. उसने कहा ठीक है मार देता हूं. उसने मार दिया, पुलिस आई अरेस्ट कर. उसने बोला यार ऑफेंस तो हुआ ही नहीं इंडिया में, मैंने तो किया ही नहीं. बोला नहीं, सेक्शन 3 लगेगा, 108A लगेगा. अबेटमेंट आपने इंडिया में कर दिया. ऑनलाइन फ्रॉड्स के केसेस होते हैं, यहीं से आप सिस्टम ऑपरेट करते हैं, वहाँ कॉल करते हैं यूएस के किसी सिटीजन को, यूके के किसी सिटीजन को, इंडिया से कॉल करते हैं, उसको झूठ बोलते हैं, उसको ट्रैप करते हैं और चीट करके उसके अकाउंट का पैसा ले लेते हैं. ऑफेंस हुआ यूएस में, फिर भी आप अबेटमेंट के लिए लायबल हो जाएंगे इंडिया में. तो ये सेक्शन 108 है जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ अबेटमेंट करता है, ठीक है. तो इसका भी इलस्ट्रेशन आप पढ़ लीजिएगा, शायद आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आ जाए. ए इन इंडिया इंस्टिगेट्स बी अ फॉरेनर इन गोवा टू कमिट मर्डर इन गोवा. ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि जिस समय आईपीसी बनी थी गोवा वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, गोवा वाज विद इन द कंट्रोल ऑफ पोर्तुगीज. ओके, अब ये गोवा इंडिया का पार्ट है. तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया लिख लीजिए, यूके लिख लीजिए, यूएसए लिख लीजिए. यहाँ पे अगर ये मर्डर होता है तो भी उसकी सेम लाइबिलिटी होगी by virtue of 108A, ठीक है. 109, 115, 116 are the punishment provisions. 109, 115, 116 इससे क्वेश्चन किया जाता है. जनरली ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि वो पैटर्न ऐसा है कि ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम में नहीं पूछा जा सकता. फिर भी आप जानने के लिए पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अबेटमेंट के लिए एक जो क्वेश्चन आता है वो मैं अभी 109, 115, 116 में डिस्कस कर लूंगा. 109 देख लेते हैं. 109, punishment of abatement if the act abated is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment. So main चीज है आपको समझने की, where no express provision is made for its punishment. If you will see the following sections, okay, in your Baer Act, मैं आपको कुछ sections दिखाता हूं आपके Baer Act के.
and you can read that. You can see abating mutiny, और इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें इसकी पनिशमेंट दी होगी, shall also be liable to fine which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. 131 में वो अबेटमेंट अगर आप म्यूटनी की करते हैं या एक सोल्जर को अटेम्प्टिंग और सेड्यूस अ सोल्जर करते हैं, सेलर करते हैं, एयरमैन करते हैं फ्रॉम हिज ड्यूटी, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो पनिशमेंट है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है या 10 साल या फाइन हो सकती है. यहां पे अबेटमेंट कुछ ऑफेंसेस का क्लियरली दे रखा है, ठीक है. आप देखिए इसमें जो इसके और फर्दर इसके सेक्शंस हैं वहां भी यू विल फाइंड अबेटमेंट, अबेटमेंट ऑफ म्यूटनी, अबेटमेंट ऑफ असॉल्ट, अबेटमेंट ऑफ सच असॉल्ट इफ द असॉल्ट कमिटेड, अबेटमेंट ऑफ डिसर्शन ऑफ सोल्जर. ओके, तो इस तरह से अगर आप ये देखिए यहाँ पे दे रखा अबेटमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ इनसबऑर्डिनेशन बाय सोल्जर. ओके, मैंने बोल दिया जाओ जाओ, आपको जो भी बोले ना मानना मत, पुलिस वाला जो बोले मत मानना, तुम्हारा सीनियर जो बोले मत मानना, टीचर जो बोले मत मानना, फादर मदर जो बोले मत मानना. ओके, तो इस तरह की ये देखिए अबेटमेंट के यहाँ पे प्रोविजंस बना रखे थे. ये एक्सप्रेस प्रोविजन है अबेटमेंट के. एंड इफ यू लुक एट योर बेयर एक्ट यू विल फाइंड सेक्शन 305, 306, 305, 306, 305 जहां पे आप अबेटमेंट करते हैं किसी बच्चे का, किसी अनसाउंड माइंड का. 306 नॉर्मल केस में आपने अबेटमेंट किया सुसाइड के लिए, इसने सुसाइड कर लिया, इसने सुसाइड कर लिया, तो यहाँ अबेटमेंट की पनिशमेंट मिल जाती है आपको. तो अगर स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखे हैं, स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखे हैं अबेटमेंट के लिए, अबेटमेंट की पनिशमेंट के लिए, सो देयर यू विल नॉट गिव द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 109. बस इसका इतना सिंपल सा मतलब है. इसमें एक मैक्सिम पूछता है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इस पे एक मैक्सिम पे क्वेश्चन आता है. ओके, आई विल जस्ट टेल यू द नेम ऑफ दैट मैक्सिम, क्योंकि उस पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको भी पता होगा उस मैक्सिम का नाम, ठीक है. दैट अ जनरल एक्ट विल बी ओवर रिडन बाय स्पेशल एक्ट. ओके, आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जनरेलिया, जनरेलिया स्पेशियलिबस, बस नॉन डेरोगेंट, नॉन डेरोगेंट, जनरेलिया स्पेशियलिबस नॉन डेरोगेंट. दैट मीन्स द स्पेशल लॉ विल ऑलवेज ओवरराइड द जनरल लॉ. तो जो 109 है वो एक जनरल प्रोविजन है, और जो आपका 131 ऑनवर्ड्स मैंने आपको दिखाया, 305, 306 दिखाया, ये एक स्पेशल प्रोविजन है. तो जब भी स्पेशल प्रोविजन और जनरल प्रोविजन में कॉन्फ्लिक्ट होगा, स्पेशल वन विल ओवरराइड. ओके, तो 109 बस ऐसे ही देख लीजिए. पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड, ये जरूरी है जहां पे एक्ट कमिट हो गया. जहां कमिट नहीं हुआ वहां आप 115, 116 देख लीजिएगा. एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट. ये भी लिख रहा है जहां पे एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है वहीं पे आप पनिशमेंट देंगे 109 से. ये आपके क्वेश्चंस में आता है. Whoever abets any offense shall, if the act abated is committed in consequence of the abatement, and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with the punishment provided for the offense. Be punished with the punishment provided for the offense. ठीक है, तो अगर आपने अबेटमेंट किया, अबेटमेंट करने के बाद एक्ट कमिट हो गया और उसके लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन पनिशमेंट का नहीं है, ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं, सो आपको वही पनिशमेंट मिलेगी जो उस ऑफेंस की है. अबेटर को वही पनिशमेंट मिलेगी जो उस ऑफेंस की है. एक्ट कमिट नहीं होता है तो आपको पनिशमेंट 115, 116 की मिलेगी. आप रीड कर लीजिएगा, हालांकि उस पर क्वेश्चन प्रीलिम्स में या मेंस में नहीं आते हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, बट यू कैन हैव अ रीडिंग, क्योंकि पेपर सेटर कहाँ से पेपर बना देगा यू नेवर नो, राइट. बट यस, यू कैन हैव जस्ट प्लेन रीडिंग कि उसका 115 का क्या सिग्निफिकेंस है, 116 का क्या सिग्निफिकेंस है.
ठीक है। 115 में हीनियस ऑफेंसेस का आप अबेटमेंट जब करते हैं, मैं आपको यही बता देता हूं, और अगर वो ऑफेंस जिसका आपने अबेटमेंट किया है दैट इज पनिशेबल विद डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट, और वो एक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हो गया तब तो आप सेम ऑफेंस सेम पनिशमेंट पाएंगे, उस केस में 7 ईयर्स। ऑफेंस नहीं हुआ लेकिन कुछ इंजरी आपने कॉज कर दी इन ऑफेंस के अबेटमेंट के बाद, ठीक है, सम इंजरी यू हैव कॉज, तो वहां पे 14 ईयर्स। 116 में अदर जो भी ऑफेंसेस बाकी के बचे इम्प्रिजनमेंट वाले, ठीक है, वो सारे ऑफेंसेस अगर नहीं कमिट हो पाते हैं तो आपको मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4 मिलता है, और अगर कोई पब्लिक सर्वेंट उसको अबेट किया या पब्लिक सर्वेंट उसमें इन्वॉल्व है तो वो पनिशमेंट डबल हो जाती है, 1/2 हो जाती है, 1 सेकेंड हो जाती है। यही आपका पनिशमेंट प्रोविजन है। मेन आप 109 पे फोकस करिएगा और स्पेसिफिक प्रोविजंस पे, ठीक है। इसके कुछ कोरिलेटिव सेक्शंस हैं लॉ ऑफ अबेटमेंट के, जिससे क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स और मेंस में, वो देख लेते हैं ब्रीफली। Please read all the illustrations, never skip even a single illustration. See 110, punishment of abatement if person abated does act with different intention from that of abater. अबेटर की क्या पनिशमेंट होगी अगर जो एक्ट हुआ है, जो एक्ट करने वाला है, जिसको अबेटमेंट मिला है, उसने किसी दूसरे इंटेंशन से एक्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए लॉ बना हुआ है, आप इसको बस रीडिंग करके अंडरस्टैंड कर लीजिए सेक्शन में दिया क्या है, बहुत डीप में आपको नहीं जाना। Whoever abates the commission of an offense shall, if the person abated does the act with a different intention or knowledge from that of the abater, be punished with the punishment provided for the offense which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of the abater and with no other. क्या लिख रहा है? And with no other. अबेटर की जो पनिशमेंट है दैट इज ओनली लिमिटेड टू द एक्ट ऑफ विच अबेटमेंट वाज गिवन, ठीक है। ये जो 110 की पनिशमेंट होती है वो बहुत सिंपल है। Whoever abates the commission of an offense shall, if the person abated does the act with a different intention or knowledge from that of the abater, be punished with the punishment provided for the offense which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of the abater and with no other. I abated you, please go and humiliate one person, harass one person, but make sure he should not be dead, he should not be killed, he should not be, his leg should not be broken. जैसे मैंने किसी को बोला एक काम करो, किसी ने मुझसे कहा कि वो अब देखिए सर आपने रोक रखा है वरना मैं तो अब उसे मार डालता, आई वुड हैव कमिटेड मर्डर। मैंने उसको बोला नहीं, मर्डर नहीं करो, वो मेरा दोस्त है, ठीक है। एक काम करो, अगर वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है तो उसकी टांग तोड़ दो, ठीक है। गो एंड ब्रेक हिज लेग, गो एंड कॉज सच एन इंजरी दैट वुड रिजल्ट इनटू फ्रैक्चर ऑफ हिज बोन, ओके। बट मेक श्योर कि सिर्फ फ्रैक्चर ऑफ बोन हो लेग का, डेथ नहीं होनी चाहिए। ये मैंने अबेट किया उसको। उसने कहा ठीक है सर जैसा आप बोले। वो गया, उसने उसको इंजरी कॉज की, उसने लेग पे मारा। उस टाइम पे उसे इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, उसने सर पे भी मार दिया, और सर पे तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया। हियर द लाइबिलिटी ऑफ ए वुड नॉट एक्सटेंड टू मर्डर, ये मर्डर तक नहीं जाएगी। ए ने बोला था सिर्फ फ्रैक्चर करने के लिए बी को, बी गया और सी को मर्डर करके चला आया, डिफरेंट इंजरी कॉज कर दी, डिफरेंट इंटेंशन से कॉज कर दी। गुस्सा आ गया उस समय उसे, उसको सारी बातें याद आ गई, उसने कहा इसको तो मारना ही, अब छोड़ो, मार डाला। तो यहाँ पे जो ए की लाइबिलिटी है वो सिर्फ कहाँ तक रहेगी? अबेटमेंट फॉर ग्रीवियस हर्ट तक या अटेम्प्ट टू मर्डर तक। अटेम्प्ट टू मर्डर तो नहीं होगी, फॉर ग्रीवियस हर्ट होगी, ठीक है। बी जो है वो मर्डर के लिए चार्ज हो जाएगा। ये कह रहा है सेक्शन 110। 110 कैन नेवर बी रेड अलोन। 110 का हमेशा एक्सटेंशन आपको मिलता है 111 में, वो देख लेते हैं। क्योंकि यहां पे लिखा था डिफरेंट इंटेंशन एंड विद नो अदर। नो अदर का मतलब समझ रहे हैं? एंड विद नो अदर, किसी और इंटेंशन से नहीं किया, उसके साथ वाले इंटेंशन से नहीं किया। क्योंकि साथ वाले इंटेंशन से करता
तो सिर्फ ग्रीवियस हर्ट कॉज करके आता. ही वुड हैव मेड श्योर कि हेड पे इंजरी नहीं करूंगा रॉड से, सिर्फ टांगों पे मारूंगा ताकि पैर टूटे. राइट? अब देखिए वो क्या कह रहा है. 111. इन सबसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके. लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट डन. यहां पे क्या कह रहा है? अबेटमेंट उसी एक्ट का था, हुआ भी वही एक्ट, लेकिन टोटली डिफरेंट इंटेंशन से उसने एक्ट कर दिया. उस इंटेंशन से नहीं किया जिस इंटेंशन से भेजा गया था. इसलिए अबेटर की जो लाइबिलिटी होगी वो सिर्फ अपने इंटेंशन के लिए होगी. यहां कह रहा है एक्ट अबेट किया, हो गया दूसरा एक्ट, तो अब वहां पे अबेटर की क्या लाइबिलिटी है वो देखिए. लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट डन. व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन, द अबेटर इज लायबल फॉर द एक्ट डन. क्या लिख रहा है? अबेटर इज लायबल फॉर एक्ट डन. यहां तो बिल्कुल उल्टा बोल दिया. अभी आपने 110 में कहा है विद नो अदर, अभी कह रहे हैं कि आपकी लाइबिलिटी अपने इंटेंशन के लिए होगी. ठीक है? वो क्या कह रहे हैं? अबेटर बी पनिश विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस विच वुड हैव बीन कमिटेड इफ द एक्ट हैड बीन डन विद द इंटेंशन और नॉलेज ऑफ द अबेटर एंड विद नो अदर. कि अगर तुम्हारे इंटेंशन से जो एक्ट हुआ होता तुम्हारी लाइबिलिटी उसके लिए होगी, ग्रीवियस हर्ट के लिए होगी, मर्डर के लिए नहीं होगी. यहां पे क्या कह रहा है? यहां कह रहा है डिफरेंट एक्ट हो गया, भेजा था पैर तोड़ने के लिए, मार के आ गए, मर्डर करके आ गए. अब तो वहां पे वो क्या कह रहा है? लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट इज अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट इज डन. व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट डन, द अबेटर इज लायबल फॉर एक्ट डन. ध्यान से समझिए. In the same manner and to the same extent as if he had directly abated it. Now listen to me carefully. In 110 your intention is different. मैंने जो बोला आप वो एक्ट नहीं किए, उस इंटेंशन से एक्ट नहीं किए. मेरा एक्ट आप किए, लेकिन उसके साथ साथ आपने दूसरा बड़ा एक्ट कर दिया, बहुत बड़ा एक्ट कर दिया. वो मेरे इंटेंशन का पार्ट नहीं था. ठीक है? तो अब आपका लगता है सेक्शन 110 और आपकी लाइबिलिटी सेपरेट कर दी जाती है. आई हैव अबेटेड यू टू कमिट एन ऑफेंस, यू वेंट एंड कमिटेड द ऑफेंस विद माई इंटेंशन, बट सम डिफरेंट ऑफेंस हैज ऑल्सो बीन कमिटेड विद द सेम इंटेंशन. डिफरेंस बताता हूं. जब मैंने आपको बोला कि गो एंड ओनली कॉज सच एन इंजरी विच मे रिजल्ट इन टू फ्रैक्चर ऑफ बोन, ओके, तो ये क्या था? ये बस इतना था कि मैंने आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया था अबेटमेंट में कि सिर्फ पैर तोड़ना और कुछ नहीं होना चाहिए. बट सपोज इफ माई डायरेक्शन वुड हैव बीन गो एंड कॉज सच एन इंजरी, टांग तोड़ के आना, उसकी छोड़ना नहीं, मार के आओ. आई हैव नॉट गिवन द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कि डेथ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ टांग तोड़ना. अब आप चले गए टांग तोड़ने, वहां स्कफलिंग हुई, इसमें रॉड मार दी आपने सर पे, डेथ हो गई, डिफरेंट एक्ट हो गया. अब एक्ट डन के लिए आपको लाइबल कर दिया गया, तो यहां पे आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी. कैसे हो जाएगी वो देखिए, उसका नेक्स्ट पैरा दिया हुआ है. प्रोवाइडेड दैट द एक्ट डन वाज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट. प्रोबेबल मतलब नेचुरल आउटकम हो सकता है इसका. अगर आप रॉड लेके भेजे हैं किसी को मारने के लिए तो उसका नेचुरल आउटकम डेथ आ सकता है. अगर आप किसी गर्ल को असॉल्ट करने के लिए भेजे हैं तो सेक्सुअल असॉल्ट या रेप उसका नेचुरल आउटकम आ सकता है. आप किसी को चोरी करने के लिए भेजे हैं तो रॉबरी उसका नेचुरल आउटकम आ सकता है. जैसे ही वो चोरी करने से रोकेगा वो पिस्टल दिखा सकता है. तो अगर दोनों एक्ट इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं और कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं था, कोई स्पेसिफिक लिमिटेड इंटेंशन का डायरेक्शन नहीं था, तो 111 में एक्सटेंडेड लाइबिलिटी पे लाइबल हो जाएगा बेटर. वो नहीं चाहता था कि डेथ हो, लेकिन फिर भी डेथ के लिए लाइबल हो जाएगा क्योंकि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है. ठीक है? रॉड लेके मार रहे हैं, कहीं भी लग सकती है. राइट? दैट इज हाउ द लॉ हैज बीन मेड. तो ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस की बात पे आपको एक्सटेंडेड लाइबिलिटी दे सकता है अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है. डायरेक्शन क्लियर है तो 110 लगेगा, आप सिर्फ अपने इंटेंशन के लिए लाइबल होंगे. ये दोनों डिफरेंस होता है 110 और 111 में. इलस्ट्रेशन देख लीजिए इसका.
A instigates a child to put poison into the food of Z and gives him poison for that purpose. The child, in consequence of the instigation, by mistake puts the poison into the food of Y, which is by the side of that of Z. Here, if the child was acting under influence of A's instigation and was the act done was under the circumstances a probable consequence of the abatement, A is liable in the same manner and to the same extent as if he had instigated the child to put the poison into the food of Y. मैंने A को इंस्टिगेट किया कि तुम जाके Y के फूड में पॉइजन डाल दो, बगल में बैठा है, ठीक है, और मैंने जाके Y के फूड में पॉइजन डाल दिया. Y ने वो पॉइजन नहीं लिया, ठीक है, वो कोई और खा गया, ठीक, या किसी और की प्लेट में चला गया वो पॉइजन, तो मेरी लाइबिलिटी उसके मर्डर के लिए भी हो जाएगी अगर वो एक्ट मेरे इंस्टिगेशन से हुआ. ये इलस्ट्रेशंस आप याद रखिएगा, एज इट इज पूछ सकता है. A instigates B to burn Z's house. B sets fire to the house and at the same time commits the theft of the property there. A, though guilty of abating the burning of the house, is not guilty of abating the theft, for the theft was a distinct act and not a probable consequence of the burning. Probable consequence नहीं है burning का ये, ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल सा एक्ट है. बर्निंग एक अलग एक्ट है, थेफ्ट एक अलग एक्ट है. मैंने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप घर जला के आना, चोरी करके आना ये नहीं बोला था. आपने घर भी जलाया, बोले जब घर जल ही रहा है चोरी भी कर लेते हैं. सो फॉर द थेफ्ट एज पर 110 and as per 111, probable consequence theft is not there. Theft is not the probable consequence of arsoning. Theft is not the probable consequence of doing mischief by fire, and that is why the abater will only be liable for setting the house on fire and not for the theft. A instigates B and C to break into an inhabited house at midnight for the purpose of robbery and provides them with arms for that purpose. B and C break into the house and being resisted by Z, one of the inmates murders Z. Here, if that murder was the probable consequence of the abatement, A is liable to the punishment provided for murder. अगर रॉबरी के लिए मैं आपको भेज रहा हूँ, that means I am considering that there might be an incident which may involve violence, and that violence could be hurt, death or anything. So अगर रॉबरी करते हुए डेथ कॉज हो गई तो डेथ के लिए भी आपकी लाइबिलिटी होगी, बिकॉज यस ऑफ कोर्स इन रॉबरी देयर इज चांस ऑफ कमिटिंग हर्ट और मर्डर, राइट? सो दैट कैन बी डन. ओके, तो इतना आप याद कर लीजिएगा. प्रीलिम्स में इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है. 112, 13, 14 यू कैन जस्ट सी, दैट इज नॉट मच रिक्वायर्ड. 15, 16 यू सी. यस, 16 का आप ये वाले इलस्ट्रेशंस जरूर पढ़ लीजिएगा. ब्राइब वाला, ब्राइबरी में अबेटमेंट लगता है या नहीं, क्या पनिशमेंट लगेगी, वो देख लीजिएगा. ओके, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. 17 वी कैन डिस्कस बिकॉज ऑन 17 क्वेश्चन इज आस्क्ड. अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक or by more than 10 persons. So sometimes they ask the question, I think if I am not wrong in 2018 this question has been asked, okay, maybe in mains or prelims. Abating commission of an offence by public or by more than 10 persons. Whoever abets the commission of an offence by the public generally or by any number or class of person exceeding 10. Whoever abets the commission of an offence by the public generally, जनरली जो हो सकता है, ठीक है, जो ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती है, और बाय एनी नंबर और क्लास ऑफ पर्सन एक्सीडिंग 10 शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ. ठीक है. सो ए है, इसने क्या किया, इसने एक मॉब को अबेट कर दिया. अभी बहुत सारे देख रहे होंगे आप, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर के इंसिडेंट्स होते जा रहे हैं. कुछ लोग मॉब को उसमें अबेट कर रहे हैं. 2 दिन पहले मैंने देखा कि एक किसी ने ऑफर दिया था कि अगर आप इनका सर काट के लाइए तो घर दे दूंगा. फिर दूसरे रिलीजियस सेक्शन वालों ने कहा अगर आप इन सारों लोग को मार दीजिए तो मैं ये कर दूंगा. समथिंग इस तरह के अगर आप अबेटमेंट देते हैं, बाद में वो अब इसी चार्ज पे अरेस्ट हुए होंगे. तो अगर आप इस तरह के अबेटमेंट्स देंगे तो उसमें आपको पनिशमेंट हो जाएगी, और वो पनिशमेंट आप याद रखिएगा, ये पूछता है कि कितने साल की पनिशमेंट या फाइन होती है. ठीक है, तो ये 3 साल की होती है. So sometimes they may ask the question that abatement to a mob is given under which section.
that is 117. What is the extent of punishment? That is your up to 3 years. आपको लग रहा होगा बड़ी कम पनिशमेंट है, कम नहीं है, ये सिर्फ इस एक्ट की पनिशमेंट है कि आप मॉब को अबेट कर रहे हैं. फिर जो ऑफेंस होगा उसके लिए तो 108 में आप लाइबल होंगे अलग से. ये तो सिर्फ 3 years इसकी पनिशमेंट है, इस अबेटमेंट की. ठीक है. सो दैट इज ऑल फॉर योर लॉ ऑफ अबेटमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एपीओ. ओके. इसके बाद देखिए हमें ये 2-3 सेक्शंस डिस्कस करने हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एपीओ एग्जाम के लिए. 118, 19, 20 आप रीड कर लीजिएगा, सिर्फ इसकी हेडिंग और इसमें क्या दिया हुआ है, क्योंकि कभी कभी ये मैच द फॉलोइंग में डाल देते हैं उठा के डिजाइन्स पे क्वेश्चन, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये. इसके बाद आपका आता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिटेल में बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. इस पे आपसे केस लॉज 1-2 पूछ सकते हैं, जैसे मोहम्मद अफजल का केस लॉज आ सकता है, बारेंद्र कुमार घोष का केस लॉज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पूछ सकता है. ठीक है. सो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई, 34 हो गया, इन सब में कुछ कॉमन केस लॉजेज होते हैं. इसमें जो मेनली आपको डिस्कस करना है वो डिस्कस ये करना है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन किस में दी हुई है और पनिशमेंट किस में दी हुई है. सेक्शन पूछता है डायरेक्ट दैट अंडर विच सेक्शन द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज डिफाइंड. ये याद रखिएगा, डिफाइंड पूछता है. आई विल टेल यू वन क्वेश्चन. One question in CRPC was asked, under which section FIR has been defined in CRPC? ये question पूछा था. Most of the students have answered section 154. No, 154 never defines FIR. FIR की definition 154 में नहीं दी है. 154 में प्रोसीजर बताया है कि FIR का प्रोसीजर क्या होगा, और उसमें एक ऑप्शन दे रखा था एग्जामिनर ने, not defined. No one has answered, most of them, I am not saying that none answered, okay, of course there may be students who must have answered, but mostly out of 10, 9 students have answered that it is section 154. तो ये आपको याद रखना होगा. अगर वो पूछ दे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज डिफाइंड, तुरंत आपको बताना है 120 है. पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B. इसका ईयर याद कर लीजिएगा कि ये 120A 120B आया कब. ठीक है, ये याद रखिएगा. तो आप यहां देखेंगे तो 113 में ये इंसर्ट हुआ था, इंसर्टेड है, सब्सटीट्यूटेड नहीं है, पूरा नया प्रोविजन लाया गया. 3 चीजें याद रखिएगा मेजरली जो आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. इसकी डेफिनेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं. When 2 or more persons agree to do or cause to be done. Can you imagine they have asked the question how many persons are required for criminal conspiracy? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है. How many persons are required for criminal conspiracy? ये पूछा जाता है. तो आपको इसी से आंसर देना है, 2 or more persons. अगर उन्होंने ऑप्शन दे दिया 2, एक ऑप्शन उन्होंने लिखा 2, फर्स्ट ऑप्शन ए में लिख दिया उन्होंने 2, बी में लिख दिया उन्होंने 1, सी में ऑप्शन दे दिया 2 or more, डी में ऑप्शन दे दिया 5. मैं आपको बताता हूं एप्रोप्रिएट आंसर वुड बी सी, क्योंकि यही आपके डेफिनेशन में लिखा है 2 or more persons. अगर वो पूछ ले मिनिमम हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, तो वो क्वेश्चन, वो आंसर हो जाएगा आपका 2, क्योंकि मिनिमम 2 है. सिर्फ पूछ ले हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड और ऑप्शन में ये दिया हुआ है 2 or more, तो आप 2 or more लगा के आइए. हालांकि ये इस लेवल पे क्वेश्चन बनता नहीं है, बट सिंस डे बाई डे द कमीशन इज चेंजिंग द पैटर्न, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू अनदर डायमेंशन, कि हो सकता है वो इससे भी पूछ दे. तो ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा 2 or more. ठीक है, क्योंकि यही आपके डेफिनेशन में दिया है. ये चीज़ें छोटी छोटी हैं ध्यान रखने वाली. अदरवाइज हालांकि कमीशन ऐसे बना के नहीं देगा, कमीशन आपको क्वेश्चन में देगा 1, 2, 3, 5, तो आप 2 लगा के आ जाइएगा. ठीक है. When 2 or more persons agree to do or cause to be done, an illegal act, क्या कह रहा है, कोई इलीगल एक्ट करने के लिए. तो इलीगल करने के लिए आपको इलीगल की डेफिनेशन पता है कहाँ पे दिया हुआ है. द डेफिनेशन इज गिवन इन सेक्शन 43. मैंने एक इंडेक्स आपको पूरा बताया था. इंडेक्स प्लीज सेक्शन 1 से लेकर के जो आपका 52 तक 53 तक दे रखा है पूरा. ठीक है. चैप्टर 4 स्टार्ट होने से पहले आप 75 तक एक बार डेफिनेशंस तो रीड कर लीजिएगा. चैप्टर 2 तक तो पूरा रीड करके आइएगा, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चंस निकलेंगे. मैं लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा मैं पैटर्न. ओके. इलीगल एक्ट, इलीगल इज डिफाइंड इन 43.
ये 3 तरह की चीज़ों को कवर करता है। पहला इलीगल में ऑफेंस को कवर करता है, दूसरा प्रोहिबिटेड बाय लॉ को कवर करता है, और तीसरा एनीथिंग विच प्रोवाइड्स अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन को कवर करता है। ठीक है, सो व्हेन 2 और मोर पर्सन्स अग्री टू डू और कॉज टू बी डन, अग्री कर गए या फिर किसी से कराने के लिए अग्री कर गए कि खुद ना करके किसी से करा देंगे, ठीक है, और या फिर an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy, इसी को criminal conspiracy कहा जाता है। तो या तो अग्री करके खुद से कर दिया या अग्री करके किसी और से करवा दिया, इलीगल एक्ट, ऑफेंस करवा दिया प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या कुछ और करवा दिया। दूसरा वो कहते हैं कि एक्ट तो लीगल था लेकिन उसका तरीका गलत था। किसी का घर गिराना है बुलडोजर से, बिना नोटिस दिए आपने गिरा दिया, वो गलत है। घर इलीगल बना था, वो प्लॉट इलीगल था, लेकिन अगर आपको गिराना है तो उसका एक रूल है, आप दीजिए कि भाई ये इलीगल जगह पे आप खड़े हैं, तो ये भी कॉन्स्पिरेसी है, इसको भी कॉन्स्पिरेसी मान लिया जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नो अग्रीमेंट एक्सेप्ट एन अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अनलेस सम एक्ट बिसाइड्स द अग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टीज टू सच अग्रीमेंट इन परसुएंस देयरऑफ। वो कह रहा है अगर आप अग्रीमेंट करते हैं तो अग्रीमेंट प्लस एक्शन अगर होगा तभी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानी जाएगी। लेकिन अगर आप अग्रीमेंट करते हैं इस इलीगल एक्ट को करने के लिए जो ऑफेंस है, यहां लिख रहा है ना, एक्सेप्ट एन अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, एक्सेप्ट एन अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof, in pursuance thereof। सिंपल सी बात। तो इसको छोड़ करके बाकी अगर आप prohibited by law any illegal act which furnishes a ground for civil action, इनके लिए अग्रीमेंट करते हैं तो आपको जब तक एक्ट नहीं हो जाता तब तक वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। लेकिन अगर ऑफेंस के लिए आप अग्रीमेंट भी बस कर लिए, एक्शन की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, criminal conspiracy to commit an offense is complete without any further action, with further action, none of the above or both, तो आपका एक्शन होगा without any further action। ठीक है, explanation, it is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement or is merely incidental to that object। एक criminal conspiracy हुई कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के जितने जंगल हैं जहाँ पे सैंडलवुड है उसको हमें इलीगली स्मगल करके लाना है। ठीक है, ये हुआ पर्पस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। 2 लोग कॉन्स्पिरेसी किए इसके लिए। फिर हमने एक थर्ड पर्सन को इंक्लूड किया अपने कॉन्स्पिरेसी में और उसको हमने बताया, ओके, वी टोल्ड हिम दैट वी आर गोइंग टू डू द इलीगल स्मगलिंग, स्मगलिंग इज इटसेल्फ इलीगल, वी आर गोइंग टू डू द स्मगलिंग ऑफ रेड सैंडल्स, ओके, सैंडलवुड फ्रॉम आंध्र प्रदेश और Telangana or Karnataka as the case may be, and since you are the ranger of this forest, so we require your clearance, you will get your share. Now listen to me carefully. They are not asking that person to come with us and cut the sandalwood. They are not asking that person that come and do the act with us. What they are doing, they are just asking him for the help by way of conspiracy that you will give the clearance. हम सब करके ले जाएंगे, रास्ते से जहां हम जाएंगे आप चेक नहीं करोगे, आपका हिस्सा आपको पहुंच जाएगा। हियर इट इज इमैटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट, अब इलीगल एक्ट वो भी कर रहा है, वेदर इट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, क्या रास्ते में उनको रोक के चेक ना करना यही अल्टीमेट ऑब्जेक्ट था कॉन्स्पिरेसी का? नहीं, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट वाज टू डू स्मगलिंग ऑफ सैंडलवुड, बट ही विल ऑल्सो बिकम पार्टी टू दैट कॉन्स्पिरेसी। तो उसने अगर एक इंसिडेंटल एक्ट के लिए भी कॉन्स्पिरेसी किया एंड ही वाज हैविंग द नॉलेज, दैट इज सफिशिएंट, दैट इज सफिशिएंट। तो कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि अच्छा बताइए लीगल एक्ट बाय लीगल मीन्स, तो आप उसको आंसर कर सकते हैं जैसे हमें पहाड़ों में रास्ता बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, वी हैव बीन गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट, अ टेंडर टू मेक वे इन फॉरेस्ट, इन डेंस फॉरेस्ट, एंड देयर वाज द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन that because of the ecology you have to maintain, you have to balance, you will not blast in the forest,
अब आपने कहा यार 50 मजदूर ले जाके अगर सड़क तोड़ते रहेंगे तब तो कॉन्ट्रैक्ट का पैसा बचेगा ही नहीं, ह्यूज अमाउंट इतना हमारा खर्च हो जाएगा लेबर कॉस्ट में। तो एक काम करते हैं, कौन देखने आ रहा है, बॉम्ब लगाया आपने, उड़ा दिया पहाड़ और रास्ता बना दिया। तो आपका एक्ट तो लीगल था बिकॉज यू हैव बीन गिवन द टेंडर टू मेक द रोड एंड यू हैव मेड द रोड, यू हैव डन द एक्ट फॉर मेकिंग द रोड ओनली, बट योर मीन्स वाज इलीगल। तो यही होता है लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स। ओके, पनिशमेंट देख लीजिए, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards shall, where no express provision is made, again आप देखेंगे कॉन्स्पिरेसी के लिए भी एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं, आप 121 ऑनवर्ड्स देखिएगा मिलेगा, with imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards shall, where no express provision is made in this code for the punishment of such a conspiracy, be punished in the same manner as if he had abated such offense. Be punished in the same manner as if he has abated such offense means अगर कॉन्स्पिरेसी के बाद एक्ट कमिट हो गया तो सेम पनिशमेंट, नहीं हुआ तो वही 1/4 और 1/2, 7 years या 14 years, जो अभी हमने अबेटमेंट के लिए देखा। सेकंड देखिए, whoever is a party to a criminal conspiracy other than criminal conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid, मतलब वो लाइफ इंप्रिजनमेंट का पार्ट नहीं है, डेथ का पार्ट नहीं है, डेथ का पार्ट नहीं है, लाइफ इंप्रिजनमेंट का पार्ट नहीं है, या 2 years अपवर्ड का पार्ट नहीं है, इससे छोटी है, सिंपल इंप्रिजनमेंट है या 2 साल से कम की पनिशमेंट है। सेकंड क्लॉज सेज whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding 6 months or with fine or with both। तो इन 3 कैटेगरी को छोड़ के ये जो आपकी 3 कैटेगरी की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, हालांकि आपसे जनरली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे डायरेक्ट सेक्शन पे क्वेश्चन पूछता है, किस सेक्शन में दिया है ये, किस ईयर में आया है ये, ठीक है। वो कह रहा है अगर डेथ वाली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपने नहीं की, ऑफेंस की, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ वाले ऑफेंस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं की, या रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 years और अपवर्ड्स की आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं की, तो उस केस में जो पनिशमेंट होगी वो होगी नॉट एक्सीडिंग 6 months और फाइन और बोथ, मतलब ये माइनर ऑफेंसेस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी इसके लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर सपोज टू रीड द केस लॉज ऑन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 1-2 केस लॉज आपको पता होगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, मोहम्मद अफजल का एक केस लॉ है, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिएगा, राइट। बारेंद्र कुमार घोष भी आप इसमें कोट कर सकते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में बिल्कुल कवर हो जाता है, ठीक है। तो आपको बस ये चीज़ें पढ़नी है, इसके अलावा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या अबेटमेंट में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। मैंने आपको जो बताया है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्वेश्चन यहीं तक लिमिटेड रहता है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं जाता है, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर योर लॉ ऑफ अबेटमेंट एंड लॉ ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी as per the requirement of your APO preliminary examination. If there is any question, you can ask in the live session or you can drop the question in the chat box and you shall be answered accordingly. All right. Thank you so much. That is all for the day and we will continue with the further sessions. You shall be notified accordingly. Thank you. Recording stopped.